ایشیا کپ میں گیم سپرٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان ٹیم کے ایشیا کپ کے بقیہ میچز پر فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے بقیہ میچز کے حوالے سے اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی COPCB سمیر سعید اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں اور اہم اجلاس آج ہوگا۔ بقیہ میچز کے حوالے سے اس میں مشاورت کی جائے گی۔ ڈیٹیلز مزید جان لیں گے وسیم احمد سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید سمیت تمام جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جس میں پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ہونے والا میچ تھا، جس میں گیم سپرٹ کی جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھی میچ ریفری کی جانب سے، اس پر پاکستان کا جو سٹانس تھا اس پر کھڑا ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان نے کہا تھا کہ جب تک ICC کی جانب سے میچ ریفری کو فارغ نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان جو ہے وہ اپنے آئندہ میچز میں ایشیا کپ کے میچز میں شرکت نہیں کرے گا، نہیں کھیلے گا۔ اسی پر جو اہم فیصلہ ہے وہ آج کیا جائے گا، کیونکہ جو تاحال ICC کی جانب سے پاکستان پر مطالبہ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن آفیشلی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اطلاع نہیں دی گئی۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے تمام جو جتنے بھی فیصلے ہیں ان پر آج جو ہے وہ اعلیٰ سطحی حکومتی جو اجلاس ہوگا اس میں مشاورت کر کے جو فیصلہ ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے وسیم، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ویمن کرکٹ ٹیموں کے مابین پہلا ون ڈے میچ قذافی اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیں گے، وسیم احمد سے بتائیے گا۔ میچ جو ہے وہ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے قذافی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ فیلڈ تیار کر لی گئی ہے۔ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ آج بہت بہتر ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ایک اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ میچ جو ہے وہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئے، کیونکہ 3 میچز کی سیریز ہے اور ون ڈے میچز جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں، اور آگے ون ڈے ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان کی وومن ٹیم جو ہے وہ بھی سری لنکا میں کھیلنے کے لیے جائے گی۔ اس کے لیے اس میچ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ جو پولیس ہے اس نے بھی سیکیورٹی کی جانب سے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تمام جو گیٹس ہیں وہ نیشنل پارک سپورٹس کمپلیکس میں داخلے کے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ شائقین کرکٹ کے داخلے کے لیے 2 مین انٹرنس رکھی گئی ہیں، جو کہ ایک فیروز پور روڈ فیفا گیٹ سے ہوگی، جبکہ دوسری جو ہے وہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے لبرٹی چوک سے ہوگی۔ تمام شائقین کرکٹ جو ہے وہ 2 جگہ پر جامع تلاشی کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں انٹر ہو سکیں گے۔ آج کا میچ دیکھنے کے لیے، میچ سے لطف اندوز ہونے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس میچ کے لیے تمام شائقین کرکٹ کے لیے داخلہ مفت رکھا گیا ہے، اور جو 2 انکلوجر ہیں وہ خصوصی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے مختص کیے گئے ہیں۔ عمران خان اور فضل محمود انکلوجر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، جبکہ عمران خان انکلوجر جو ہے وہ اسپیشلی فیمیل کے لیے، فیملیز کے لیے رکھا گیا ہے، جہاں پر فیملیز آ کر آج کا میچ جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 31ویں اجلاس کے دوسرے روز کا ایجنڈا جاری۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اجلاس میں محکمہ امداد باہمی پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا، جبکہ دوسری نشست میں اراکین اسمبلی 0 آور نوٹسز پیش کریں گے اور اجلاس میں 5 تحریک التواء کار زیر بحث آئیں گی۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی 10 نئے مسودات قانون پیش کریں گے۔ دوسری نشست میں 6 مسودات قانون منظور کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اراکین اسمبلی آج 3 نئی قراردادیں پیش کریں گے۔ دوسری نشست میں 5 موجودہ قراردادیں زیر بحث آئیں گی۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی اہمیت کے حامل معاملات اٹھائیں گے۔ تو پنجاب اسمبلی کے 31ویں اجلاس کے دوسرے روز کا ایجنڈا جاری کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اجلاس میں محکمہ امداد باہمی پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ دوسری نشست میں اراکین اسمبلی 0 آور نوٹسز پیش کریں گے۔ اجلاس میں 5 تحریک التواء کار زیر بحث آئیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کے کیس پر سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ شہباز شریف کے بیان پر جرا سے قبل عدالتی حلف لیا۔ آپ نے بانی PTI کو لیگل نوٹس بھیجا ہی نہیں، وکیل محمد حسین کی جانب سے کہا گیا۔ شہباز شریف نے جواب دیا کہ جی یہ غلط ہے، میں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ کیا بانی PTI نے سیاسی بیان دیا تھا؟ محمد حسین کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ شہباز شریف نے جواب دیا بالکل سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ اس نے ہتک عزت کی ہے۔ اس سماعت کا حوالہ مزید جان لیں گے شاہین عتیق سے، بتائیے گا۔ جی آج ایڈیشنل سیشن جج الماز غنی نے شہباز شریف کی طرف سے بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے کی سماعت جو ہے وہ 27 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آج
शहबाज शरीफ पर बानी PTI के वकील की जगह जो है वो मुकम्मल हो गई है। अदालत में आज मुख्तसर जगह जो है वो बानी PTI के वकील ने जो की है, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो सवालात किए। उनका कहना ये था कि जो लीगल नोटिस आपने दिया है ये जाली और फर्जी है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये गलत है। शहबाज शरीफ को पर सवाल किया गया कि आपने जो नोटिस भेजा था वो भी गलत, आपने नोटिस जो है वो नहीं भिजवाया, लेकिन दावे में कहा है कि नोटिस भिजवाया। तो इस पर भी शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो बयान है, जो बात है आपकी, ये गलत है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर आपने झूठे इल्ज़ाम जो है वो आयद किए हैं। उन्होंने कहा ये गलत है। शहबाज इमरान खान ने मेरे खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए कि मैंने रिश्वत जो है वो दी, हालांकि मेरा पनामा से कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैंने कोई किसी को रिश्वत नहीं दी। इन्होंने ये बयान देकर मेरा शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ताहम अदालत में आज इजरा जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब आइंदा तारीख पर शहबाज शरीफ की तरफ से रिमेनिंग जो गवाह है, जिनमें स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और अता तारड़, ये दोनों के बयान जो है वो आइंदा तारीख पर कलमबंद किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती, 2 मुल्जिमान को सजाए मौत का हुक्म दिया गया। मुजरिम गुलफाम अली अरसलान उर्फ भोली को उम्र कैद और 30 हज़ार जुर्माना किया गया है। मज़ीद जान लेंगे इस हवाले से शाहीन अतीक से। शाहीन बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने माजूर बच्ची के साथ ज्यादती करने के केस में 2 मुल्जिमान गुलफाम अली और अरसलान को सजाए मौत और उम्र कैद के अलावा 30 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा जो है वो दी है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मनामा पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में प्रोसिक्यूशन सहर अमरीन है, उन्होंने बाकायदा DNA की रिपोर्ट भी पेश की जो साबित हुई है, और दोनों मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर अदालत ने सजा का हुक्म जो है वो सुना दिया। इस केस में 11 के करीब गवाह जो है वो पेश किए गए थे। जी ठीक है शाहीन अतीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरूनी मुल्क मुकीम बाप बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा, बहू और पोते दादा से खर्चा वसूल कर सकते हैं या नहीं, ये कानूनी नुक्ता उठाया गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन बताइएगा। जी, फैमिली अदालत में आज एक कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि अगर बाप बेटी को और बहू को ख़र्चा ना दे तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी दादे पर आयद होती है और दादा जो है वो ख़र्चा जो है वो देगा। आज इसी नौयत का केस जो था वो अदालत में फौजिया नामी एक लड़की है जिसने अपनी वालदा की वसातत से दावा जो है वो दायर किया था, जिसमें उसने कहा कि मेरा बाप जो है वो बैरून मुल्क है, ना वो मुझे ख़र्चा दे रहा है ना मेरी वालदा को कोई ख़र्चा जो है वो दे रहा है, लिहाजा हमें ख़र्चा जो है वो दिलवाया जाए। इस पर अदालत में कानूनी नुक्ता पेश किया गया जिसमें कहा गया कि अगर बाप खर्चा ना दे तो फिर दादा उसका ज़िम्मेदार होता है। इस नुक्ते को सामने लाते हुए अदालत ने दादे को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है 3 अक्टूबर के लिए कि वो अदालत में पेश हों। अदालत में ये दावा जो है वो हसीब एडवोकेट हैं उनकी वसातत से जो है वो यहाँ पर पोती फौजिया ने अपनी माँ की वसातत से दायर किया है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेरे सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद हुआ। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा फर्स्ट बोर्ड में तमाम डिविजनल SPs की शिरकत। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, चोरी के 37 मुकदमात ज़ेरे बहस आए। अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली से मुतल्लिक अहकामात जारी किए। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी वकास। इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेरे सदारत जो है वो तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड का इजलास हुआ था, जिसमें शहरियों की तरफ से जो तफ्तीश और एक दरख्वास्त आयत थी तब्दीली के लिए, उन पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इस पर जो मुख्तलिफ केसेस के तफ्तीशी थे वो भी शरीक हुए, जो SPs थे SDPO थे वो भी इसमें शरीक हुए। कुल 37 मुकदमात के जो दरख्वास्तें थी वो इसमें ज़ेरे बहस आई थी और SSP ने कुछ जो केसेस थे उनकी जो दरख्वास्त थी साइरिन की तरफ से चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की उसको मंजूर किया, जबकि बात को जो है वो वहीं पर रहने दिया। SSP का कहना था कि मकसद इसका ये है कि अगर तफ्तीश में किसी किस्म का कोई जोखम या कमी है तो उसको बेहतर पूरा किया जा सके। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं अर्बन यूनिट ने सैलाब मुतासिर इलाकों में सर्वे टीमों की भर्ती मौखर कर दी है और वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। अर्बन यूनिट का ये बताना है।
जबकि मुलतवी इंटरव्यूज लाहौर समेत दीगर शहरों में शेड्यूल थे। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा। अर्बन यूनिट को टास्क दिया गया था कि वो पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे के लिए जो है वो हायरिंग करें, और इसके लिए क्योंकि स्टाफ जो है वो बहुत कम है सूबों के पास, तो लिहाजा अर्बन यूनिट पर ही ये टास्क सौंपा गया था PDMA की तरफ से कि वो अपनी इंडिविजुअली तौर पर जो है वो हायरिंग करेंगे, और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो एक टाइम दिया गया था 13 सितंबर का। लेकिन उस पर जो अर्बन यूनिट के हुकाम, उनका कहना है कि ये डेट जो है, इस डेट को कुछ एप्लीकेंट्स जो है वो आए, लेकिन उसके बाद ये मामला जो है अभी फिलहाल रोक दिया गया है और ये डेट और टाइम जो है वो मुअख्खर कर दिया गया है। और इस पर अर्बन यूनिट के हुकाम का कहना है कि सर्वे के लिए जो नई की जाएगी उसके लिए जल्द एक नया जो है टाइम और स्केड्यूल जो है बता दिया जाएगा, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के जो मुतअद्दिद अज़ला जो सैलाब से मुतासर हैं वहाँ DC के ऑफिस में ये वॉक इन जो है तमाम किया। तो उसका क्राइटेरिया और सिर्फ मैट्रिक पास अफराद जो है वो इसमें आ सकते हैं कि वो एक सर्वे के लिए पंजाब हुकूमत के साथ एक टीम का हिस्सा बनेंगे और सर्वे करेंगे, जिसमें असेसमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत करना चाहती है। तो इसके लिए नई डेट का ऐलान जो है अर्बन यूनिट जल्द करेगा। उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू के तहत जो हायरिंग है वो एक आर्जी तौर के ऊपर की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत डिविजनल इजलास हुआ। आटा चीनी दस्तयाबी ब्यूटिफिकेशन पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इस्लाह की पेशरफ का जायजा लिया। फ्लड एरियाज में तिब्बी सर्विसेज, अद्वियात फराहमी, क्लिनिक ऑन व्हील्स को मुअस्सर किया जाए, कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। कमिश्नर के इस हवाले से मजीद क्या कहना है, बात कर लेते हैं। ताहिर जमील खान हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DC कसूर और DC ननकाना के अलावा ADCR शहूबुल्लाह ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सैलाब उतर गया है, लेकिन फ्लड एरियाज आबादियों में तिब्बी सर्विसेज, अद्वियात फराहमी, क्लिनिक ऑन व्हील्स को मजीद मुअस्सर किया जाए। सैलाब ज़दा आबादियों में इंसदादे डेंगू और वाटर बर्न डिजीज पर अजला फोकस करें। सैलाबज़दा एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर बहाली को तेज तर किया जाए। उनका कहना था कि साफ सुथरा पंजाब की तहत सफाई वर्कर्स को मुतहर करके सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। फ्लड रिलीफ कैंप से वापस जाने वालों के लिए राशन और जानवरों के लिए चारा और वंडा भी फराहम किया जाए। लाहौर में इतना वज़ार का ब्यूटिफिकेशन प्लान तैयार है। उन्होंने कहा नवंबर में आगाज होगा। लाहौर में आटा चीनी कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 24 घंटों में 7 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जी ठीक है ताहिर, हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मज़ीद डिटेल जानेंगे। रोडा हेड ऑफिस में रोडा हुकाम और डेवलपर्स का इजलास हुआ। CEO रोडा इमरान अमीन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मंसूर अहमद जंजुआ और दीगर ने इसमें शिरकत की है। ताहिर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त रूडा के हेड ऑफिस में रूडा और जो डेवलपर्स हैं उनका एक इजलास हुआ है, जिनमें डेवलपर्स ने रूडा के जो काम इस वक्त साइट्स पर चल रहा है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस हवाले से बात करेंगे आबिद लतीफ़, डायरेक्टर कम्युनिकेशन और PR हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर बताइएगा, इसमें कौन कौन से इसमें आपके स्टेक होल्डर या डेवलपर्स हैं और किस एजेंडे पर आज गुफ्तगू हुई? जी देखिए, इसमें सारे डेवलपर्स हैं और अब आपने देखा ये जो पिछले दिनों जिस आफत से सारा मुल्क गुजरा और अभी भी हम गुजर रहे हैं, इसमें आपने देखा कि हमने जो जितना अभी तक रूडा ने काम किया जो रिवर ट्रेनिंग वर्क पे, और उसकी वजह से जहाँ तक काम था हमने डेवलपमेंट की थी, वो इलाका काफ़ी सैलाब से बचा रहा और उसमें कोई नुकसान नहीं हुए। तो अब उसी काम को, इस सारी जो पेस है इसको पेसअप करने के लिए आज ये इजलास है जी। इसमें सारे डेवलपर जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके ऊपर एक जो लाहे अमल जिसमें हम अगर हमने एक प्रोजेक्ट जो था वो उसको से फॉर एग्ज़ाम्पल उसका टाइम पीरियड 3 साल था या 4 साल था, तो उसको अब शॉर्ट करके उसको जल्दी किया जाएगा ताकि जो पब्लिक सेफ्टी है, जो आने वाला टाइम है, जो क्लाइमेट चेंज है और जो रूडा की कमिटमेंट है लोगों को फ्लड से बचाने की, फ्लड के अगेंस्ट मिटिगेशन और मेजर्स करने की, तो उसको पेसअप किया जाए। थैंक यू जी। ये थे आबिद लतीफ़ साहब जो हमें बता रहे थे आज के इजलास के हवाले से, और उनका कहना है कि जो काम 3 साल के अंदर इनकी डेडलाइन थी वो मुकम्मल करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। पंजाब असम्बली इजलास बदस्तूर वक्त पर शुरू नहीं हो सका। प्राइवेट मेंबर्स डे पर भी अरकान असम्बली ऐवान से बदस्तूर गायब हैं।
अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, मगर इस वक्त अरकान मौजूद नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास बदस्तूर वक्त पर शुरू नहीं हो सका। प्राइवेट मेंबर डे पर भी अरकान असम्बली ऐवान से बदस्तूर गायब है। अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास आज होना था जो कि वक्त पर शुरू नहीं हो सका। प्राइवेट मेंबर्स डे पर भी अरकान असम्बली ऐवान से इस वक्त गायब है। अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, मगर अरकान असम्बली इस वक्त ऐवान में पंजाब असम्बली में मौजूद नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास बदस्तूर वक्त पर शुरू नहीं हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं, राव दिलशाद हुसैन से जान लेंगे, बताइएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज अभी तक का जो दौरानिया रहा है, हमेशा 1 बजे या 11 बजे इजलास जो है वो बुलाया जाता था, लेकिन आज इजलास भी गैर मामूली तौर पर जो है वो 3 बजे तलब किया गया, लेकिन 3 बजे भी अरकान असम्बली जो है वो ऐवान में नजर नहीं आए। ऐवान में इस वक्त होता है और बिल्कुल जिसको गैर संजीदा रवैया कहा जा सकता है, उसको बिल्कुल उसके अक्कासी इस वक्त पंजाब असम्बली के इस ऐवान में की जा रही है। ताहम अरकान असम्बली को बुलाने के लिए घंटियां बजाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर ये 31वां इजलास बुलाया गया था, जिसका एजेंडा जारी किया गया, जिसका कल पहला रोज था, आज दूसरा रोज है। और आज चूंकि प्राइवेट मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर डे के मौका पर अपोजिशन जिसकी रिक्वेजिशन पर यह इजलास बुलाया गया था वो भी इस इजलास में मौजूद नहीं है। अपोजिशन अरकान से मुतल्लिक जो है वो खबर यह है कि वो क्योंकि आज अडयाला में पार्टी बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए जो वो अवसर रवाना हो चुके हैं, तो आज मुमकिन तौर पर अपोजिशन की भी जो हाजिरी है वो भी इंतहाई कम होगी। अलबत्ता जो हुकूमती अरकान हैं या प्राइवेट मेंबर डे के हवाले से जो वो प्राइवेट मेंबर्स अपना ला सकते हैं, उनकी तादाद की अभी तक हौसला अफजा नहीं है। अलबत्ता घंटियां जरूर बजाई जा रही हैं ताकि ऐवान में अरकान असम्बली पहुंचे और इजलास शुरू हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर को तंजीम साजी के मसाइल का सामना है। PTI लाहौर तंजीम ताहाल मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खादिम कंबोह से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर को तंजीम साजी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नए सदर मियां अकरम उस्मान की तैनाती के बाद ताहाल लाहौर तंजीम जो है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी और नए सदर जो है वो अपनी काबीना भी तश्कील नहीं दे सके हैं, जबकि अहम ओहदा जनरल सेक्रेटरी लाहौर का वो ओहदा भी खाली है। अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है जिसमें अवैध संजुम, शबीर गुजर, उस्मान रियाज मलिक शामिल है, लेकिन अभी तक जनरल सेक्रेटरी का नाम भी फाइनल नहीं किया जा सका है। ज़राए के मुताबिक तंजीमी ढांचे की अदम तकमील से कारकुनान में बेचैनी पाई जा रही है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।